ओके अगेन वेलकम बैक एवरीवन राइट. सो तब तक हम देख रहे थे तो इसका आंसर आया था -4.5 एंड एवरीवन इज एग्रीड विथ -4.5. आपके दिमाग में कोई अदर मेथड नहीं है, सो इट इज गुड बिकॉज एनी अदर मेथड अदर देन दिस इज रॉन्ग. योर आंसर शुड बी -4.5. ओके एंड अनदर वैल्यू इज अवर 0.2. इन अ सेम वे अब हमें कन्वर्ट करना है -8 इंटीजर 2/4 को, राइट. सो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस विल बी माइनस पहले बाहर ले लेंगे. 4 8 32 plus 2, that will be 34 by 4. 34 by 4 is nothing but the 17 by 2, and if we'll divide 17 by 2, we all know that 2 8s are 16, so it will be 8.5 minus 8.5. right now अब आपको देखना है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़े होंगे, नेगेटिव नंबर छोटे होंगे. यहाँ पे दो नंबर आपके पॉजिटिव हैं 0.2 एंड 7.4. तो उसमें सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा आपका होगा 7.4, उससे छोटा होगा 0.2. यस और नो? राइट. फिर दो नेगेटिव नंबर हैं आपके पास, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में थे, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया -4.5 -8.5. तो जब आप नंबर लाइन पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे -4.5 पहले आएगा, उसके बाद आपका आएगा -8.5. So this will be the ascending order. So everybody clear in question 5 now? This is the third question of question 5. If you are clear in this third part, then first two parts you can do clearly, right, or easily. Just type Y or N in chat box as quickly as possible. Is it clear to you, everyone? Right. If anyone is having doubt in this question, type N. I will clarify your doubt. Okay. 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 Janvi is asking, sir, we can write 0.2 as 2 by 10. Yes, Janvi, we can write 0.2 as 2 by 10. Okay, so all of you are clear with this question. Okay, so we are ending up here with in-class exercise. Anyone is having doubt in in-class exercise 9M 1.1? Okay, Saubhagya पूछ रहे हैं सर, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इनटू डेसिमल वैल्यू कैन वी चेंज इनटू फ्रैक्शन? हाँ, आप सारी चीजें फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हो, राइट. बट फ्रैक्शन में फिर आप फिर उसको फ्रैक्शन में एलसीएम लेके सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा और फिर आपको डिसाइड करना होगा, जैसा आप क्लास 8 में करते थे. ओके जो भी सौभाग्य से नाम से लॉगिन है, आपका रियल नाम क्या है? कि सौभाग्य ही है आपका नाम? जस्ट टाइप योर रियल नेम प्लीज. नव्या. अच्छा नव्या, सॉरी नव्या. नव्या, यू आर इन दिस क्लास 9th ग्रुप? यू आर इन क्लास 8 ग्रुप ना, और 10th ग्रुप ना? ओके. नो. ओके, सो यू आर डिफरेंट नव्या, आई गेस. ओके. You are not Navya Popuri. Okay, you are Navya. Yes. Okay. Okay. Thank you. So this was all about in-class exercise. Okay. So let us see now our homework exercise. Okay. So in homework, you all are having doubt in question 5, 6, 9, 10. So let us solve first question 5. So question 5, homework's question 5 is same as in-class exercise question 3, right? See, homework question 5 is same as in-class exercise question 3. Here also they have given you number line, from that you have to guess the value. So that I have cleared you now, so you can clear that till. But let me show you its third part, because it is third part is complicated than rather two. So if you are clear with third part, you can solve first and second. So for third part, they have exaggerated -4 and -3, or between -4 and -3. So between -4 and -3, you are having 1, 2, 3, 4, 5 partitions or 4 lines, right? So value of each partition will be 1 by 5. Here it will be 2 by 5, 3 by 5, and 4 by 5. So we have to find this value. So this value will be -4 plus 2 by 5. So this will be 5 4s are -20 plus 2. So that will be -18 by 5. Okay, clear with this? So
With this method you can easily complete question 5 now. Okay, so this was all about your homework exercise question number 5. So let us see next question. Next question you are having doubt in question 6, 9 and 10. Okay, so question 6 is also same as the recent question we have seen, right? आपको ascending order में लिखना है. तो क्वेश्चन सी का मैं 6 का मैं डिफिकल्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट ले रहा हूँ. तो अगर वो मैंने आपको बता दिया तो फर्स्ट एंड सेकंड आप आराम से कर लोगे. ओके, सो सौंदर्य बोल रहे हैं रिपीट करें. मैं क्या रिपीट करूं सौंदर्य? यू आर अनम्यूटेड. एक मिनट आराम से धीरे धीरे बोलो. हाँ सौंदर्य बोलो. आपका नाम क्या है पहले? आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रहा है सौंदर्य. व्हाट इज योर नेम? अभिरम्या. हाँ अभिरम्या बोलो, क्या रिपीट करना है? सर आप जो एक्सप्लेन किया फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या नंबर लाइन वाला? हाँ. नंबर लाइन वाला तो मैं 1 2 3 ये चौथी बार कर रहा था. आपको चारों बार पता नहीं चला क्या? नो सर, वो नॉइज आ रहा था तो मेरे को समझ नहीं आया. आप कहाँ पे बैठे हो? ऐसी जगह पे क्यों बैठे हो कि नॉइस आ रहा है? आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है बहुत, अभी भी आ रहा है. या सर बोलिए. हाँ आप कहाँ पे? देखो अभी भी नॉइस आ रहा है. मैं अभी 5वीं बार क्या मैं 50 बार समझाऊंगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रहा है. नो सर, मैं वॉल्यूम ज्यादा. आप ठीक है, आप कुछ भी करो, आप ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ो ना जहाँ पे नॉइस आए ही नहीं. राइट. नंबर लाइन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 4 बार पढ़ा दिया अभिरम्या. देखो वापस करा रहा हूँ. इससे 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता. समझो, अगर सारी चीजें मैं ऐसे 5 10 बार पढ़ाने लगा तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा. -4 -3 1 2 3 4 वी आर हैविंग 4 पार्टीशंस. सो टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 5. 1 2 3 4 5. हर एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1/5. तो पहला पार्ट 1/5 है, दूसरा पार्ट 2/5, तीसरा पार्ट 3/5, चौथा पार्ट 4/5. आपको वैल्यू निकालनी है ये पार्ट की. तो ये पार्ट आपका हो जाएगा -4. फिर उसमें हम कितना ऐड करेंगे? 2/5. सो -4 प्लस 2/5 इट विल बी 5 4 -20 प्लस 2/5 इट विल बी -18/5. अब पता चला अभिरम्या? अभिरम्या पता चला? ओके थैंक यू. सो ऐसी जगह पे बैठो जहां पे नॉइस ना हो. प्रहलाद पूछ रहे हैं सर इज इट नॉट -1/5? नो प्रहलाद, वो -1/5 नहीं होगा, क्योंकि वो पार्ट की वैल्यू है. ये 1/5 किसकी वैल्यू है? पार्ट की वैल्यू है. ये इतना पार्ट 1/5 है, इतनी लेंथ 1/5 है. लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. इतनी लेंथ 2/5 है, इसलिए हम वो 2/5 इसमें ऐड कर रहे हैं. -4 प्लस 2/5. इज इट क्लियर प्रहलाद? चलो, तो अब क्वेश्चन 6 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 6 का आपका थर्ड है -4.65. उसके बाद है 4. फिर है आपके पास 4.76. फिर है आपके पास -24/25 एंड फाइनली 4 इंटीजर 4/25. ओके, चलो इसको समझने की कोशिश करो. मैं इसको थोड़ा और अच्छे से सेट कर रहा हूं ताकि आपको पूरा दिखे. ओके, तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई दैट फर्स्ट. ओके, सो -4.65 तो क्लियर ही है, 4 भी क्लियर है, 4.76 भी क्लियर है. अब -24/25 है, हमें उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम 100 में कन्वर्ट कर देते हैं. तो नीचे 25 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 में कवर होगा, बिकॉज 25 4 से 100. और अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब मुझे न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ना 25 4 से 100, ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा. राइट. नाउ 24 4 जा 4 4 जा 16, 24 जा 80, 80 and 16 is 96. So it will be -96/100. वापस रिपीट कर रहा हूँ. So 24/25 था, राइट. It will be -96/100. और सिंस 100 है तो मैं 2 डेसिमल कट कर दूंगा. अगर मैं 2 डेसिमल कट कर रहा हूँ तो इस वैल्यू विल बी -0.96. ओके, so I hope this is clear to you. Chandan sir, can we convert decimal into fraction? Yes Chandan, you can go by that also.
डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। चलो 4 इंटीजर 4/25, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में 25 4 100, 100 + 4 104/25। ओके अगेन अब ये 104/25 है, हमें वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये 25 4 आपका हो जाएगा 100, 104 × 4 वो आपका हो जाएगा 4 4 16 सबसे पहले, एंड 4 1 4। ओके सो 416/100। अब यहाँ पे अगर मैं 2 डेसिमल कट करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 4.16। ओके चलो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को देखेंगे, फिर नेगेटिव नंबर को। तो पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा है 4, 4 के बाद है आपका 4.16, राइट 4 4.16 फिर 4.76। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर में तो सबसे पहले आपका आएगा -0.96 फिर -4.65। तो यहाँ पे आपका आएगा -0.96 फिर -4.65। तो ये हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा। अब फाइनली इसको हमें जिस फॉर्म में दिया गया है इस फॉर्म में लिख देंगे। -4.65 इसी फॉर्म में दिया गया है तो हम इसे -4.65 ही लिखेंगे। -0.96 was -24/25, तो हम इसे -24/25 लिखेंगे। 4 हमें 4 ही दिया गया है। 4.16 is 4 integer 4/25 and 4.76 is as it is. So this is our final answer. मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आपको पूछ रहा हूं इसमें डाउट है या नहीं। हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्लास 8 तक जो भी क्वेश्चन थे हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते थे। क्लास 9 में हम नई मेथड सीख रहे हैं कि जिसमें हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वाला केस आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ऑलरेडी 3 नंबर तो क्लियर है, इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो -24/25 है। डेसिमल में कब कन्वर्ट होगा? जब मैं इसको 100 में कन्वर्ट करूंगा। 100 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 4 100, 24 4 96, माइनस एज इट इज 100 के 2 डेसिमल कट, इट विल बी -0.96। 4 इंटीजर 4/25, पहले मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। 25 4 100, 100 + 4 104/25। अगेन डिनोमिनेटर को मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 में कन्वर्ट करूंगा। 100 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 4 100, 104 4 416। So 416 divided by 100 will be 4.16। अब मैं इसको डेसिमल के हिसाब से अगर सीक्वेंस में लिखूं, जैसे नंबर लाइन पे लिखता हूं, so first will be 4, after that 4.16, after that 4.76, and in negative side first will be -0.96, then -4.65. Then let us convert them into given form. -0.96 was given as -24/25 and 4.16 was given as 4 integer 4/25. So is it clear to you everyone? Now you can easily complete question number 6. Just type Y or N in chat box as quickly as you can if it is clear to you. If it is not clear to you, type N so that I can ask you. Okay, good Navya, very good. Good to see that you have changed your name. Very good Navya. Next. Okay, so it is clear to you each of the person who is logging with Lenovo, please change your name. Okay, thank you. Another person log in as Sol something, right? Just change your name, students, so that we can understand. Okay, so let us see your next doubts. Your next doubts are in question number 9 and 10. So those were also based on question 8, class 8 only, right? तो वो हम देखते हैं क्वेश्चन 9 और 10। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपकी स्कूल में क्लास 8 में फाइनल सिलेबस सिर्फ आपका ऐसे 2 था या उससे भी कम कर दिया गया था। क्लास 9 वालों का फाइनल सिलेबस फुल सिलेबस था, राइट? तो आपका भी फाइनल सिलेबस फुल सिलेबस ही होगा। सो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अभी से अच्छे से ध्यान देना। Okay, let us quickly complete this question 9 and 10 so that we can start our new exercise, that is 9M 1.2. Now, question number 9, students.
insert two rational numbers between 1 by 3 and 1 by 4 and arrange them in descending order. So this is 1 by 3 and 1 by 4. मुझे दो numbers बीच में insert करने हैं. Raise your hand. कौन बताएगा quickly? Raise your hand. Okay, Yashila ने already answer दिया है. Krishna, let me ask Krishna. Krishna, can you hear me? Krishna, you are unmuted now. You can speak. If there is any problem in mic, you can write in chat box. Krishna, let me ask another student. Okay, all are previous students. No one from new student. Krishna, if you are not having mic, then type in chat box. You just have to use your earphone only, right? Earphone में ही mic होता है. आपको नया mic खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. कोई mic नहीं चाहिए आपको. Okay. So, okay. जो लोकेश नाम से लॉगिन है, लोकेश नाम से लॉगिन है, वो शायद मनोज एल है. कैन यू हियर मी? मनोज एल. हाँ सर. हाँ, you are unmuted now. Okay, so today it is all clear to you, right? चलो बोलो कैसे करेंगे? सर पहले डिनोमिनेटर्स का वो एलसीएम निकालेंगे सर. फिर उसके बाद क्या? सर फिर वो बस फिर बीच में जितने नंबर डालते हैं डाल सकते हैं, राइट? वो उसके ठीक है. बाद वो थैंक यू मनोज. ओके, आपका नेट स्लो हो रहा था. नो इश्यू. ओके, थैंक यू मनोज, थैंक यू. और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है, तो जब भी आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है मुझे प्राइवेटली रिप्लाई करें ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को रिप्लाई ना देख सकें, राइट? जब मैं क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ तो. ओके, तो आप ऑलरेडी कर चुके थे. हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. सो एलसीएम ऑफ 3 and 4 we all know that it is 12. ओके, फिर आपका ये एलसीएम इन दोनों जगह पे आ जाना चाहिए. अब यहाँ पे वो एलसीएम कब आएगा? जब आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 12 कब आएगा? जब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस नंबर विल बी योर 4 by 4 3s are 12. दिस नंबर विल बी योर 3 by 4 3s are 12. अब 3 by 12 और 4 by 12 इसके बीच में कोई नंबर आप इंसर्ट कर सकते हो? फिलहाल नहीं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में ऐसा होगा. फिर कृष्णा ने बोला सर हम दोनों जगह पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों जगह पे, तो आपके पास रेंज बढ़ जाएगी. दिस नंबर विल बी 30 by 120. दिस नंबर विल बी 40 by 120. अब 30 और 40 के बीच में यू आर हैविंग 10 नंबर्स टू इंसर्ट और 9 नंबर्स फ्रॉम 31 to 39. ओके, तो आप कोई भी डाल सकते हो. आपको क्वेश्चन में बोला गया सिर्फ 2 नंबर डालो, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे लिख सकता हूँ माई 30 by 120 will be less than 31 by 120 will be less than 32 by 120 and so on will be less than 39 by 120 will be less than 40 by 120. अब इसमें से बीच में आप कोई भी 2 नंबर लिख सकते हो, राइट? जो भी नंबर आप लिखोगे राइट होंगे. एज फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख रहा हूँ 31 by 120 एंड 38 by 120 या सपोज 39 by 120. और लास्ट में आपको दिया गया है आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो योर डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी बिगर नंबर पहले 40 by 120, उसके बाद उससे छोटा नंबर दैट इज 39 by 120, फिर और छोटा नंबर 31 by 120 एंड फाइनली 30 by 120. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? तो ये हो गया. चलो सर वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 टू गेट 2 रेशनल नंबर. हाँ यस, आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? सर वी कैन टेक 2 नंबर्स एंड देन अरेंज देम. यस यस, कोई भी 2 नंबर ले सकते हो. आप मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो जो पहले मिड पॉइंट फाइंड करते थे. ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज ऑफ सिमिलर काइंड, राइट? जिससे आपको ये क्वेश्चन में और क्लियरिटी आएगी. आपको बोला गया फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/6. 1/5 और 1/6 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और फिर उसको डिसेंडिंग और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ओके, यहाँ पे ऑर्डर डिसेंडिंग था, अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ओके,
साकिब पूछ रहे सर कैन वी टेक 2 numbers एंड देन नरेंद्र, हाँ वो तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, साकिब और प्रहलाद के डाउट्स। चलो 1/5 एंड 1/6, तो अगेन पहले 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ 6 एंड 5? रेज योर हैंड और टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली। 5 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा? कौन आंसर करेगा? माही आपने ज्वाइन कर लिया? कैन यू आंसर? यू आर अनम्यूटेड नाउ। 30. बोलो माही। 30 सर। ओके ग्रेट। सो 5 एंड 6 का आपका हो जाएगा 30 एलसीएम। तो वो 30 लाने के लिए हम इधर 1/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, एंड 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस नंबर विल बी 6/30, दिस नंबर विल बी 5/30। अभी तो मैं फिलहाल 5/30 और 6/30 के बीच में एक भी नंबर इंक्लूड नहीं कर सकता। ओके, सो हियर वन स्टूडेंट इज कॉजिंग प्रॉब्लम। तो ये आप अनम्यूटेड हो अभी। आपका नाम क्या है जो सॉल्व मॉर्टल से लॉगिन है? आपका नाम बोलो। व्हाट इज योर नेम? टाइप इन चैट बॉक्स। अगर आप एक ही चीज ऐसे बार बार आप सेंड करते रहोगे, आपको ग्रुप से रिमूव किया जाएगा। सॉल्व मॉर्टल। शशांक, आप कितने नंबर से लॉगिन हो शशांक? एक ही बार टाइप करके आंसर देना है बस। आप इसको गेम की तरह समझ के खेल रहे हो। ओके, इट इज नॉट अ गेम। ग्रेट, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। चलो ओके, तो हमने नहीं, अभी विकास पूछ रहा है सर क्या 5 और 6 के बीच में 5.1/30 लिख सकते हैं? नहीं, विकास ये पूछ रहा है सर 5 और 6 के बीच में क्या हम 5.1/30, 5.2/30 ऐसा लिख सकते हैं? नो, ऐसा हम नहीं लिख सकते। 5.1/30, 5.2/30 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्टीमेटली वो 51/300 हो जाएगा, 52/300 हो जाएगा। राइट, तो वो फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे किसने पूछा? प्रहलाद, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। यस, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। तो हम यहाँ पे बोथ साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे। जनरली क्लास 8 में हम एक मेथड फॉलो करते थे 10 से मल्टीप्लाई करने की, तो हम उसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सो दिस विल बी योर 60/300 एंड दिस विल बी योर 50/300। राइट, अब 50/300 और 60/300 उसके बीच में कितने नंबर डाल सकते हो? आप बहुत सारे नंबर डाल सकते हो। अगेन 51 to 59, so 50/300 is less than 51/300 is less than 52/300 and so on, less than 59/300 is less than 60/300. Is it clear to you each and everyone? अब आपको बोला गया इसमें से 6 नंबर लिखो, तो कोई भी 6 नंबर लिख सकते हो, और यही ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर है। राइट, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए? Question number 9 and question number 10. If it is clear, type Y in chat box quickly. If it is not, then type no. I will clarify your doubt. Then we will go to next exercise. Okay. Okay. So it is clear to each and everyone, right? Okay. Great. 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 You all are learning very great. Keep it up. इसी तरीके से करते रहो, right? तो इसी तरीके से हम अच्छे से पढ़ लेंगे. Okay. So let us begin our new exercise, that is 9M 1.2. Okay. नाइन एम 1.1 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आज का आपका होमवर्क ये होगा, 9M 1.1 में आपके जितने डाउट्स थे वो पहले आपको लिख लेने हैं घर से। ओके, फिर 9M 1.2 के लिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो हम लिखेंगे। ओके, सो 9M 1.2 आपका जो टाइटल है, इट इज नथिंग बट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इज डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब समझना, ये वही है डेसिमल एक्सपांशन जो ऑलरेडी हम कर सकते हैं। अच्छा, ओके, भावेश को डाउट है। ओके ओके, सॉरी 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 भावेश, ध्यान में नहीं गया। लेट मी आस्क यू, वेट 1 minute. Okay, भावेश, you are unmuted now. You can ask your doubt. ओके सर। सर थोड़े क्वेश्चंस में इंसर्ट करके दिया है,
तो हाँ। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है 6 इंसर्ट करने, तो हाँ। 10 इंसर्ट करके 6 निकालना है कि 6 इंसर्ट करके 6 से निकालना है? आप दोनों कर सकते हो, बोथ आर राइट। राइट, आप 10 इंसर्ट करके ओके 6 निकालो या 6 इंसर्ट करके 6 निकालो, दोनों आंसर वैलिड है। ओके, ओके दोनों में सर, आपको थैंक यू मार्क्स सर। मिल जाएंगे। ओके, ओके सर, हाँ सॉरी भावेश, वो देख नहीं पाया। ओके, एंड प्रहलाद ने भी पॉइंट आउट किया, गुड। ओके, थैंक यू। हाँ थैंक हाँ, चलो। ओके, सो आप दोनों मेथड कर सकते हो। अब समझो, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स वो कुछ नहीं है, वो वही चीज है जो मैं ऑलरेडी आपको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन समझा चुका हूं। तो उसी के बेस पे से हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, और कुछ चीजें यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इरेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि इरेशनल नंबर है क्या, और इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। चलो, तो इरेशनल नंबर अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि ऐसे नंबर्स हैं कि आइदर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट, कि जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या दूसरे वे में बोले तो दे आर नॉट फिक्स नंबर्स। फिक्स नंबर्स मतलब हमें पता नहीं है वो क्या होगा, हमारे लिए वो नंबर्स कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप है कि आगे क्या होगा, एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, राइट, या मैं ये बोल सकता हूँ वो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी क्या होगी वो हमें पता नहीं है। ओके, तो वो वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर है। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हम अभी तक देख चुके हैं, तो अभी तक हम देखे हैं एक ही नंबर वैसा, पहले पाई, राइट, पाई की वैल्यू रियल वैल्यू 3.1435 क्या होगा पता नहीं, ये भी होगा कि नहीं पता नहीं। सो 3.14 के बाद चलता जाता है, राइट। इस पे अभी भी रिसर्च होती है स्टूडेंट्स, राइट। इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं कि 3 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद ये वाला नंबर ये होगा, राइट। उस पे मैथमेटिशियंस आगे जाके, मतलब आप चाहो तो उसमें आगे जाके उसमें फाइंड करके रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट, और कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं, तो समझो √4 आपको पता है, √4 की वैल्यू 2 होगी, यस और नो। √9 की वैल्यू आपको पता है 3 होगी, राइट। बट सपोज मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ √2, राइट, इट इज क्वेश्चन मार्क। हमें ये पता है, सी समझना, हमें ये पता है कि √1 की वैल्यू 1 है, हमें ये पता है कि √1 की वैल्यू 1 है, राइट। मैं ये लिख रहा हूं, हमें ये पता है √1 की वैल्यू 1 है, राइट। हमें ये पता है √4 की वैल्यू 2 है, राइट। तो ऑब्वियसली √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही होगी, √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही होगी, इन दोनों के बीच में ही होगी, राइट। बट वो कौन सी वैल्यू होगी हमें पता नहीं है। हाँ, यहाँ पे जानवी ने और प्रहलाद ने आंसर दिया सर 1.414 1.4, यस इट इज राइट, बट √2 आपका हो जाएगा 1.414, पर आगे क्या होगा हमें पता नहीं है, इट इज क्वेश्चन मार्क, इट इज नॉट फिक्स कि आगे क्या होगा, इट इज नॉट एक्जैक्टली 1.4, वो चलता ही रहता है। its approximate value is 1.4, right, its approximate value is 1.4, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। okay, it comes in points, yes Navya, it comes in points, okay, so the thing is अगर मैं अंडर रूट में ऐसे नंबर ले रहा हूं जिसका स्क्वायर रूट मुझे ऑलरेडी पता है, राइट, अगर आपको याद हो तो आप ऐसे नंबर्स को क्या बोलते थे, परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो दोज आर रेशनल नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, दोस आर रेशनल नंबर्स। बट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट, एज फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपको ये बता दूं कि वो इरेशनल नंबर्स हैं, ओके, तो सॉरी प्राइम नंबर्स हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर p कोई भी मैं प्राइम नंबर लिखूं, प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सपोज मैं 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, 5 लिख रहा हूं, तो ये सारे कौन से नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स। Everybody clear with this? So I'm repeating once again. तो अभी तक सिर्फ इतनी चीजें याद रखो, इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, इरेशनल नंबर ऐसे होंगे जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो फिक्स नहीं है, जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर √2 है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, √3 है, √5 है, वो इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल है पाई, एग्जाम्पल है √p वेर p इज एनी प्राइम नंबर, राइट। कोई भी प्राइम नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो इरेशनल होगा। कोई पूछेगा सर क्यूब रूट निकालोगे तो, यस वो भी, राइट। तो क्यूब रूट भी अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ओके, जिलान को डाउट है, लेट मी आस्क यू जिलान। तो किसी को इस कंसेप्ट में डाउट है, इस कंसेप्ट में जिसको भी डाउट है जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स
I will ask, I will clarify your doubt. Okay. Zilan, you are unmuted now. You can ask your doubt. सर √6 में क्या करेंगे सर? हाँ, √6 भी आपका इरेशनल नंबर होगा, समझो, क्योंकि √6 में क्या होगा जिलान? √6 is √2 into 3. Okay, so it is multiplication of two irrational numbers, right? फिर इसी तरफ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है सर, √8 में क्या करेंगे? तो √8 भी आपका यही होगा, √4 into 2. तो √4 into √2. अब √4 आपका 2 है, 2 into √2. ओके, तो सिंस इट इज 2 into √2, इरेशनल नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा. ओके सर पर वो प्राइम नंबर नहीं होगा ना सर? हाँ, वो प्राइम नंबर नहीं होगा. ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया. सी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि √p अगर वो प्राइम नंबर होगा तभी वो इरेशनल है, राइट? मैंने एक सिंपल दिया कि अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर होगा तो इरेशनल होगा. इन शॉर्ट, रूट में कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर के सिवाय का कोई भी नंबर होगा, 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट? तो वो प्राइम नंबर हो, वो इरेशनल नंबर होगा, राइट? और वो प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में मैंने दिखाया कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल ही होता है, राइट? इन द सेम वे रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है. ओके, क्लियर विद दिस जिलान? जी. ओके, यस सर, थैंक यू. नाउ वास्तव इज हैविंग डाउट. वास्तव पूछ रहे हैं कि सर, डू इरेशनल नंबर रिपीट इन सेम पैटर्न आफ्टर पॉइंट? नो वास्तव, इरेशनल नंबर कभी भी सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होंगे. अगर वो सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, दैट मींस दे आर नॉट इरेशनल नंबर, दे आर रेशनल नंबर्स. ओके, राइट? सो एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ये इरेशनल नंबर के कंसेप्ट में क्लियर हो गया? चलो, अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट? तो क्वेश्चन में आपकी पहली एक्सरसाइज है, उससे थोड़ा इरेशनल के लिए आपकी क्लियरिटी हो जाएगी. सो लेट मी शेयर विथ यू दैट पीडीएफ. हम वो पीडीएफ में ही पूरा अच्छे से देखते हैं. ओके, प्रहलाद ने लिखा नो सर. तो प्रहलाद, आपको कोई डाउट है? मतलब डाउट में आपने नो सर लिखा कि क्या लिखा प्रहलाद? यू आर हैविंग एनी डाउट? No doubt, sir. Okay, thank you, Prahlad. Okay, so let me show you your module first. Okay, so I think this is another. Give me 1 minute. Let me open your module first. And okay, can you able to see this PDF? Right, this PDF I was shared with you on the screen. Now you can able to see this PDF, right? किसी को भी अपना हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो सी, ये मॉड्यूल में ऑलरेडी आपने ये कर दिया ऑलरेडी 9M1.1. ओके, 9M1.1 के आपके जितने डाउट्स थे वो मैंने आपको करा दिए. आज हमने 9M1.2 शुरू किया और कुछ चीजें मैंने आपको समझाई. अब उसके बेस पे से हम ये एक्सरसाइज फटाफट कर रहे हैं, राइट? सी केयरफुली दिस एक्सरसाइज. इसमें हमें नंबर दिए गए हैं. अब हमें नंबर के सामने टिक करना है कि क्या वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और रियल. तो अभी मैं आपको तुरंत करा रहा हूँ, राइट? घर से आपको वापस कर देना है. सो टेल मी अबाउट 3, राइट? फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करना है. इज 3 a नेचुरल नंबर? टाइप y और n इन चैट बॉक्स as quickly as you can. Is 3 a natural number? Yes, good, good. चलो, is 3 a whole number? Yes, every natural number is whole number. Every whole number is integer. Every integer is rational number. So, do 3 a irrational number? क्या 3 आपका irrational number है? नहीं,
right? 3 is not your irrational number. And is 3 a real number? Yes. Okay. Now what is real number? Real number is combination of both rational and irrational number. Real number is combination of both rational and irrational number, right? I have taught you till rational and irrational only. Real number is combination of both rational and irrational, right? In real numbers you will get all the numbers. Okay, chalo, let us do this exercise once again for 1.6. चलो 1.6 आपका नेचुरल नंबर है. बाई और एन चैट बॉक्स. ग्रेट. नो. चलो होल नंबर है? नहीं. इंटीजर है? यस. इज इट इंटीजर? अगेन आई एम आस्किंग. 1.6 इंटीजर है? नहीं. राइट, इंटीजर नहीं है. साकिब पूछ रहे हैं सर इंटीजर्स आर रियल नंबर्स. यस साकिब, right, because all see this all natural whole numbers and integers are included in rational number only, right? I will show you its chart. ये एक्सरसाइज खत्म करने के बाद मैं बोर्ड पे आपको उसका पूरा चार्ट बता रहा हूँ साकिब, ठीक है? सो 1.6 आपका इंटीजर भी नहीं है. 1.6 रेशनल है? यस, क्योंकि वो एग्जैक्ट है, हमें पता है. इरेशनल है? नहीं. अगर वो रेशनल तो इरेशनल बिल्कुल नहीं होगा. एंड रियल है? यस, राइट. ऑल नंबर्स आर रियल नंबर. रियल तो होगा ही. चलो -2 क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं. होल नंबर है? नहीं. इंटीजर है? yes, is it is integer. And if it is integer it is rational as well, and if it is rational it is not irrational and it is real. 200. चलो 200 नेचुरल नंबर? yes. 200 होल नंबर? yes. 200 इंटीजर? यस, ऑब्वियसली अगर नेचुरल है तो होल इंटीजर रेशनल अपने आप हो जाएगा. इरेशनल? नो. रियल नंबर? यस. चल पाई. पाई नेचुरल नंबर है? नो. होल नंबर? नो. इंटीजर? नो. रेशनल? नो. ओनली इरेशनल, राइट. और वो रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो वो होगा आपका रियल नंबर. ओके, रियल तो होगा ही होगा. ओके, चलो -5/√4. तो सी स्टूडेंट्स, √4 हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. सो इट इज -5/2, राइट. वी नो दिस एग्जैक्टली. -5/2. -5/2 नेचुरल नंबर है? नहीं. होल नंबर है? नहीं. इंटीजर है? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. -5/2 इज इंटीजर? यस और नो? -5/2 is integer? No, right? So -5/2 is rational number. Is it rational number? Yes. Is it irrational number? No. If it is rational then it cannot be irrational and it is real number, right? चलो 10/19 नेचुरल नंबर है? नहीं. होल? नो. इंटीजर? नो. रेशनल नंबर? यस. ओके. इरेशनल? नो. एंड रियल नंबर? यस. चलो 0. क्या 0 नेचुरल नंबर है? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. इज 0 नेचुरल नंबर? नो. ओके, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स and reply me privately, right? Don't reply in front of everyone. Chalo, now is 0 whole number? Yes, 0 is whole number. Chalo, is 0 integer? Yes, it is integer. If it is whole number then the series will continue till rational number only.